Okay. Welcome class to the second lecture of subject family 2. Last lecture I started with Hindu Marriage Act. Now going further, just a recap before I actually proceed further, and I hope that all students are having a bare text of the codified Hindu law containing Hindu Marriage Act for reference. Whenever I read the section, kindly make it a point that you look at the section. So always have the bare text of Hindu Marriage Act. While any codified laws is being taught, it should be in your hands. Please mind it again. So I reiterate that point, that you should be having a bare text right in front of you. Okay, now going further, last lecture I actually dealt with certain provisions wherein we saw the changes that have been brought into the marriages between two Hindus prior to Hindu Marriage Act and after to Hindu Marriage Act. Prior to Hindu Marriage Act, we were governed by the uncodified law. Post or pursuant to the Hindu Marriage Act 1955, now we are governed by the provisions of the Hindu Marriage Act 1955. And this point I made it clear from section 4 that any sort of conflict, if there is any conflict that the uncodified law says X and the codified law, the Hindu Marriage Act says Y, it is the Y that will prevail upon. So the provisions of the codified Hindu laws always overrule or override upon the provisions of the uncodified law. So this is also clear. Now going further, we saw that it is a sacrament as compared to other religions, as compared to a Muslim nikah or a contractual marriage as is between the Christians. Hindu marriage is a sacrament and marriage is always solemnized. How is it solemnized? We saw also the ceremonies. Section 7 and Section 8. Section 7 particularly talks about the ceremonies, wherein if there is Saptapadi, a Hindu marriage cannot be solemnized unless and until that Saptapadi is solemnized, or the both parties undergo the Saptapadis, that is the 7 sacred steps before the sacred fire. No other thing solemnizes the marriage. So जो पिक्चर में देखा है वो भूल जाओ, पिक्चर की शादी होती है, फिल्मी शादी होती है, खून भरी मांग, हार डाल दिया, फेरे ले लिए, उससे शादी नहीं होती है. शादी कभी होती है जब भी सप्तपदी हो जाता है. एंड इन केस द पार्टीज आर सिख, इन दैट केस इट कैन बी अनंकारा. इफ द पार्टीज आर बुद्धिस्ट, फॉलोअर्स ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऑनरेबल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड गौतम बुद्ध, they are having somewhat, it has what you can say, it is similar or comparable to a Muslim nikah where the oaths are exchanged, whether you accept husband or wife, that kind of things, but it is Hindu law. Then again we saw Hindu law is applicable to whom? Hindu law, all codified laws are equally applicable to Hindus and sub-Hindus also, which covers Sikhs, Buddhists and the Jains. Only who are not covered is the Muslims, Christians, Jews and Parsis. They are not governed by the Hindu law. Then we saw section 8, which talks about registration of the marriages. A Hindu marriage requires to be compulsorily registered. As far as state of Maharashtra is concerned, it is mandatory, made compulsory by the government by a notification. However, failure to not register the marriage will not affect the status of the marriage. The marriage will not become invalid. But then see, basic thing remains whether it is a valid marriage or not, or it is a voidable marriage, or it is a void marriage. That we see subsequently. For that, now we start with the lecture, we proceed further. We actually need to first deal with section 5. Section 5 deals with conditions of a Hindu marriage. Rather, conditions are set out, what conditions are there for a valid Hindu marriage. Kindly refer to section 5 and read it. Section 5, conditions for a Hindu marriage. A marriage solemnized between two Hindus if the following conditions are fulfilled, namely, first, Roman 1, neither party has a spouse living at the time of the marriage. Then Roman 2, at the time of the marriage, neither party, subsection A, is incapable of giving a valid consent to it in consequence of unsoundness of mind, or B, though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind, see these words are very important, of such a kind or to such an extent
Kindly underline those words. I again repeat those words. Mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and procreation of children. So वो that unsoundness of mind must be to that extent. See, थोड़ा पागल हर एक आदमी होता है, मैं भी थोड़ा सा पागल हूँ, तुम लोग भी थोड़े से पागल हो. पागलपन के जो आसार होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, those are there in every person. Any person is not fully sane and any person is not fully insane. किसी चीज़ से मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरा कंट्रोल अपने के ऊपर से खो देता हूँ. मैं आपको क्या बोलते हैं उसको, मेरा आपा खो जाता है. आई लूज कंट्रोल ओवर माई सेल्फ ऑन वॉट एवर पॉइंट एंड देन आई एब्सोल्युटली बिकम इनसेन, और मैं जानवर की तरह भी बिहेव कर सकता हूँ. सो ये सिम्टम्स सब में होते हैं, लेकिन वो टू सम ऑफ दैट काइंड एंड टू दैट एक्सटेंट दैट ही इज और शी इज अनफिट फॉर द मैरिटल ड्यूटीज. ओके, देन गोइंग फर्दर एंड वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल. पहले आप सेक्शन फिर ठीक से पढ़ लो एंड देन आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर. देन सी सेक्शन 5 रोमन 1 एंड देन नीचे जो कंडीशन है उसमें सी हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, पागलपन, किसी किस्म के दौरे पड़ते हैं वो. देन रोमन 3, यहाँ पे रोमन 2 खत्म हो गया. देन रोमन 3 सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 रोमन 3, द ब्राइडग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 years and the bride the age of 18 years at the time of the marriage. Then Roman 4, the parties are not within the degrees of prohibited relationship, are not within the degrees of prohibited relationships unless the custom or usage governing each of them, kindly underline those words, each of them permits of a marriage between the two. And in Roman 5, the parties are not subpoenas of each other unless the custom or usage governing, again same thing, each of them permits of a marriage between the two. So these two conditions are there, subject to custom, that we will discuss. First let us see, understand this thing, that certain aspects of contract are applicable to marriage, though in strict sense Hindu marriage is not a contract. As discussed in last lecture, what is a Hindu marriage? It is a sacrament, एक संस्था, एक संस्कार है. इसीलिए मैरिज कैसे होता है, संपन्न होता है, उसको पढ़वाया नहीं जाता है, कराया नहीं जाता है. Now see, first try to understand this thing, that these conditions are very important. Section 5 is the most important section to understand what are the conditions of a valid Hindu marriage. अगर जो conditions ये section में set out किए हुए हैं, if those conditions are violated, are not complied with, in that case that marriage might become a void marriage or even might become a voidable marriage. Now see, before understanding this concept, first let me brush up certain concepts of contract, जो आपका actually last first semester में हुआ है. Okay, now tell me, contract क्या होता है? Contract, it is an agreement which is enforceable by law. Then going further, contract के types होते हैं based on enforceability. कौन से types होते हैं? Valid contract, void contract और voidable contract. Now see, contract valid होने के लिए क्या होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए. The parties must have capacity to contract. Then there must be a free consent. Then there must be no other what you can say violations of law, जो specifically law में barred है वो नहीं होना चाहिए. Though this is not a lecture of contract, certain aspects I need to touch, and ये तो problem है ही. See, वो घोड़ा रहता है ना, घोड़ा जिसको या तो टांगे के आगे लगाया जाता है या घोड़सवार बैठता है हॉर्स राइडिंग के लिए, वो जो घोड़ा रहता है ना उसके आँख के यहाँ पे ना त्याला मराठीत झापड म्हणतात. आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश. झापड म्हणतात. वो क्यों लगाते हैं? ताकि घोड़े को खाली सामने का ही दिखे, आजू का ना दिखे, कहीं वो घोड़ा भटक न जाए. सी उस वी कांट बी लाइक घोड़ाज, वी इन द सेंस स्टूडेंट्स ऑफ लॉ. तो जब भी हम लोग कोई एक सब्जेक्ट डील कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट में इन एडवर्टेंटली और इन एविडेंटली
घुसना ही पड़ेगा. यू हैव टू टच सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ सेग्रीगेशन में नहीं है. यू कैन नॉट सेग्रीगेट द लॉज. So certain laws are applicable. So though it is not a contract in very strict sense, yet there are certain components of contract that are applicable. अभी देखो वैलिड के लिए तो क्या क्या है वो हमने डिस्कस किया. देन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, who can enter into a contract. First condition, the parties must be major. Second condition, the parties must be of sound mind. And third condition, the parties must not be disqualified by any law to which they are subjected. Now that is not a subject matter before us. So ये दो चीज़ तो रहेंगी कि they must have capacity to contract. So यहाँ पे क्या है, शादी के लिए 18 साल नहीं है, जो दूल्हा है, जो हस्बैंड है उसके लिए 21 ईयर्स एंड वाइफ के लिए कितना है 18 ईयर्स. ये डिफरेंस क्यों है मेरे दोस्तों? What do you think that we boys, now even I am a boy, so what do you think that males or boys थोड़े लेट मैच्योर हो जाते हैं लड़कियों से, इसीलिए वो डिफरेंस रखा है? No. See, that is not the reason. Biologically there are certain reasons. First of all, ये now this is not something to do with your study. ये एक जनरल नॉलेज है कि पति हमेशा बड़ा क्यों होना चाहिए. नहीं तो कभी कभी हो जाता है, हमने देखा है लोग कुछ भी शादी कर लेते हैं एंड देन पछताते हैं. सी व्हाट हैपन्स यू नो जनरली नेचुरली. नाउ सी ये मैंने आई हैव डेल्ट विद दिस प्रॉब्लम. मैंने एक बार आईपीसी का लेक्चर था क्राइम्स का एंड उसमें एक टॉपिक है ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज. So I asked a question very innocently. I am not innocent, but I asked that question very innocently or in sense of a lecturer that what is the intention to get married? शादी किस लिए होती है? The answer was very very interesting. The boy answered, शादी सेक्स करने के लिए होती है. सेक्स करने के लिए शादी की थोड़ी ना ज़रूरत पड़ती है. So मुझे उसको क्लास के सामने बहुत बेकार शब्दों में उसको डांटना पड़ा. So please remember this thing that even when we are dealing with certain topics, या अभी देखो डिवोर्स में हम लोग कुछ ये देखेंगे. In that sense we will have to deal with or touch the aspect of the relationship between husband and wife. Insanity है या impotency है, जहाँ पे we have to go right into the bedroom and talk about the physical relationship between the husband and wife. So kindly make it a point. Now we are sitting in our home and having online lectures, but otherwise whenever we are in a physical class, please see to it that हम लोग फालतू के बातें नहीं कर रहे. These concepts are coming within the topic of our subject, so we are discussing that. वो नाके पे खड़े रहकर जैसे दोस्त आपस में कुछ भी फालतू की बातें करते हैं ना, गॉसिप, वो नहीं है. That you will enjoy it and talk it in a very wrong or bad sense. So please maintain decorum and please understand that you know certain things जो पर्सनली वो बहुत हमको क्लियरली और एकेडमिकली डिस्कस करनी है without going into much particulars of it. Okay, then going further, so now see section 5 को देखो अब. तो ये हाँ that I was discussing that ये difference क्यों होता है या क्यों होना चाहिए. Why should the husband be slightly elder than the wife? Actual सबसे आइडियल एज होता है 8 से 10 साल. क्यों मालूम है? एक बताता हूँ आपको. पति है ना, पति मतलब जो मर्द है वो कभी भी यूजुअली बूढ़ा नहीं होता है. He remains sexually active for quite longer period than compared to women. Women का क्या होता है देखो, women are also sexually active, लेकिन क्या होता है, there is a time in life when women hit their menopause. Menopause क्या होता है? When the natural menstruation cycles come to a stop. There are lot of hormonal changes within the body and within the mind of the women, and at some times the women might just give up continuing the physical relationship with the husband. So वहाँ पे थोड़ा इशू होता है. तो वो सब देख के सी you can make fun of Hindu religion, लेकिन let me tell you one thing, I am not saying this only because I am a Hindu, लेकिन हिंदू कल्चर में, हिंदू रिलीजन में हर एक चीज़ के पीछे शास्त्र होता है. देयर इज साइंस, डीप थॉट बिहाइंड एवरीथिंग. लेकिन हम लोगों का आजकल क्या है, हर चीज़ को उड़ाओ मजाक और आगे बढ़ो और रिलीजन का मजाक उड़ाओ. लेकिन रिलीजन इज इट सेल्फ टू ग्रेट टू बी मेड फन ऑफ इट. दैट अपार्ट. नाउ सी, सो दीज आर सर्टन थिंग्स के बाद 21 साल का होना चाहिए, 18 साल का होना चाहिए. देन दे मस्ट बी मेंटली साउंड. किसी पागल आदमी से शादी कर दी तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है. सो लेट अस गो इनटू दैट एस्पेक्ट. सो इनिशियली सी, फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, कंसेंट कैसा होना चाहिए, थोड़ा याद करो. कॉन्ट्रैक्ट है, कंसेंट कैसा होना चाहिए. इट मस्ट बी नॉट ओनली अ कंसेंट बट मस्ट बी अ फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट किसको बोलते हैं? जो फ्री में मिलता है, बिना पैसे दिए नहीं.
Free consent is a consent which is not obtained by using coercion, undue influence. Then the third component, misrepresentation. Fourth component, fraud या mistake. अगर वो कंसेंट कोर्शन से लिया है, कोर्शन मतलब धमकी देके, कोर्शन एक थ्रेट है किसी किस्म का गुनाह करने का. देन मिसरिप्रेजेंट अंडू इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे पार्टीज आर इन सच रिलेशनशिप कि वो ना नहीं बोल सकता है. दया फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पे फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया है. दैट वी विल सी. सो कभी कभी क्या होता है दैट कंसेंट माइट बी ऑब्टेन बाय फ्रॉड. इन दैट केस दैट मैरिज इज नॉट वॉइड बट वॉइडेबल. पहले ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लो. एंड देन वैलिड में तो सब कुछ बराबर है, वॉइड में क्या है, देर इज नो एनफोर्सेबिलिटी, इट इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल. और वॉइडेबल ट्रिकी सिचुएशन होता है. वॉइडेबल में क्या होता है, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर कंसेंट, फॉर वांट ऑफ एनी अदर थिंग, इट इज वॉइडेबल और इट कैन बी अवॉइडेड बाय वन पार्टी. विच पार्टी? जिसका कंसेंट फ्री नहीं है. सिमिलरली देखो, मैरिज में certain components are applicable and we need to always brush up the concepts of contract. So coming to that aspect, now let us go back to section 5. पहले देख लो section 5 का first condition क्या है. A marriage may be solemnized between any two Hindus. So again let me reiterate that Hindu marriage can be solemnized only between two Hindus. Hindus, parties must be Hindus either by birth or by conversion. या एडॉप्शन में तो हिंदू ही होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अगेन अ कंडीशन. सो हिंदू मस्ट बी बाय बर्थ, बाय कन्वर्सन और बाय एडॉप्शन. फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, नेमली फर्स्ट, नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज. तो अगर किसी पार्टी की पति या पत्नी जिंदा है, इन दैट केस इट इज कॉल्ड दैट द मैरिज इज इन सबसिस्टेंस इवन इफ द पार्टीज आर रिसाइडिंग सेपरेटली. कभी कभी होता है ना, शादी हो जाती है लेकिन पार्टी साथ में रिसाइड नहीं करते, दे डोंट कोहैबिट विद ईच अदर. इन दैट सिचुएशन ऑल्सो यू कैन नॉट से हम लोग साथ में नहीं रह रहे तो शादी काहे की, शादी काहे की, प्रैक्टिकली हो गया. लेकिन कानूनन इन द आइज ऑफ लॉ इट इज अ मैरिज. सो व्हाट इज मैरिज इन सबसिस्टेंस? दैट द मैरिज हैज बीन प्रॉपरली डन, प्रॉपर सेरेमनीज ऑफ मैरिज हैव बीन परफॉर्म्ड, द पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर देयर. सो फर्स्ट पॉइंट, it must be a valid marriage. Second point, that parties may cohabit or may not cohabit. अगर अलग अलग भी रह रहे, 20 साल भी अलग अलग रहने दो, that शादी is still in subsistence. Then third point, where the spouse is living. तो जब तक ये अभी समझो पार्टीज अलग अलग रह रहे और एक उसमें से मर गया तो दूसरा फ्री हो गया, लेकिन जब तक पार्टी जिंदा है तब तक मैरिज इज इन सबसिस्टेंस. सो irrespective of the fact whether the parties cohabit with each other or not, still the marriage is in subsistence till the lifetime of the parties. So ये खत्म कभी हो जाएगा? Only and only in case where a competent court will grant the decree of divorce. Now which is the court competent to deal with matrimonial matters, family matters? Yes, family court. And डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस या तालुका प्लेसेस जहाँ पे फैमिली कोर्ट नहीं है, इन दैट केस सिविल जज सीनियर डिवीजन. सो दीज आर द कोर्ट्स विच कैन डील विद दिस मैटर. एंड इन सर्टन केसेस जहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट है या क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, दैट इज इंडियन डिवोर्स एक्ट, इन दैट केस, और पारसी मैरिज एक्ट, इन दैट केस द jurisdiction does not remains with civil judge senior division but it goes either to the district court or to the high court. दैट विल सी लेटर, वो थोड़ा सा बाद में देखते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट ये पहले हमने समझ लिया दैट नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज. इफ दैट इज द केस दैट आई और एनी अदर पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड और वो दूसरी शादी करता है, तो दूसरी शादी क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी, कानूनन इनवैलिड हो जाएगी. दैट विल नॉट हैव एनी मीनिंग इन द आइज ऑफ लॉ. देन सी सेकेंड, at the time of the marriage, neither party A is incapable of giving a valid consent to it in consequences of unsoundness of mind, or B, though capable of giving a valid consent, has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and procreation of children, or C,
हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। अब ये तीनों हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सी इसमें क्या होता है ना, इफ दिस कंडीशन इज वायोलेटेड द मैरिज विल बिकम वॉइडेबल एंड नॉट वॉइड। वाई? सी क्या हो जाएगा, समझो दो लोगों की शादी हो गई एंड वाइफ इज मेंटली अनफिट, सो शी कैन नॉट गिव अ वैलिड कंसेंट, उसको समझ में भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सी बच्चों को छोटेपन में होता ना, लहानपणी असतं बघा, भातुकली खेळतात आपण, शादी खेलेंगे, तो रियल शादी थोड़ी ना होती है, या गुड्डे गुड्डी की शादी कर देते हैं, डॉल्स की शादी करते हैं खेलने के लिए, वो थोड़ी ना शादी होती है। लेकिन उनको समझ में आता है, तो शायद वो बच्चा अगर वो वन ऑफ द पार्टीज से हस्बैंड और वाइफ हुएवर इट इज, दैट इज इमटेरियल, उसका प्रॉपर दिमाग काम नहीं कर रहा है, ही इज ऑफ अ वीक माइंड, या उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ है, वो है 20 साल का, लेकिन उम्र से समझो लड़की 20 साल की है, लेकिन उम्र से वो 8-9 साल की हुई है। सो उसको शादी मतलब क्या है मालूम है? उसको लगता है शादी म्हणजे क्या है, शादी क्या होता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, गहने पहनना, मेकअप करना और सज धज के खड़े रहना। लेकिन शादी के बाद में क्या होता है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मैरिड पर्सन? कोहैबिटेशन है, देन इनिशियली मैरिज कंसूमेट होना चाहिए, then there are certain responsibilities that are added on, that the parties have to look after each other. अगर वाइफ है तो she has to firstly offer herself to the husband sexual intercourse करने के लिए, similarly for the husband. So initially कोई भी शादी में से शादी सेक्स के लिए नहीं होती है, that cannot be the sole intention of getting married. सेक्स करने के लिए थोड़ी ना शादी करनी पड़ती है। सो उसमें कैसा रहता है, लेकिन इनिशियली कोई भी रिलेशनशिप बिल्डअप होने के लिए एक इनिशियल, जैसा अभी बिल्डिंग बनाने का तो उसको एक पाया बनाना पड़ता है जिसको प्लिंथ बोलते हैं। सो बिल्डिंग बिना पाए का खड़ा होगा, बेस के बिना बिल्डिंग खत्म नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा। सिमिलरली कोई भी रिश्ता, अभी पति पत्नी का रिश्ता, उसमें ये एस्पेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, एंड इनिशियली द फिजिकल अट्रैक्शन इज क्वाइट मोर। हाँ, विथ ग्रेजुअली पॉइंट ऑफ टाइम 5 साल 10 साल 15 साल हो गया तो दैट बिकम्स वेरी ऑब्वियस, और उसका जो ग्रेविटी है वो कम हो जाएगा, उसकी जो कंसिस्टेंसी है, उसका जो रिपीटिशन है वो कम हो जाएगा। सी इनिशियली कैसे रहता है, नाउ सी लेट अस डिस्कस दिस एज एडल्ट्स। एंड इनिशियली जब भी कैसा होता है, शादी होती है तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो मे बी देयर कैन बी अ सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, कभी कभी तो 1-2 बार से ज़्यादा भी हो जाएगा। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल उसके बाद में वो जो एक किस्म का मोनोटोनस हो जाता है, उसमें एक किस्म का ऑब्वियसनेस आ जाता है, उसमें नया कुछ नहीं रह जाता। ओके, वो ज़रूरत है। सी व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ मैन, टेल मी? रोटी, कपड़ा, मकान, और चौथी ज़रूरत होती है शरीर की भूख, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्स। एवरी पर्सन, एवरी एनिमल रिक्वायर्स एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स, उसका जेंडर का एक अपना एक्सप्रेशन है विच हैज़ टू बी देयर। मैरिड हो नहीं हो, अगर अकेला सड़ा फटिंग आदमी है या लड़की है तो भी यू नो बेटर, सो आई नीड नॉट गोइंग टू दैट डिटेल्स। सो आदमी सेक्सुअली बहुत एक्टिव हो जाता है, जो आदमी या औरत जब भी सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, इन द सेंस दैट मेल स्टार्ट्स गेटिंग इरेक्शंस टू हिज पेनिस एंड द फीमेल स्टार्ट गेटिंग द मेंसेस, उसको क्या बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड एज अटेनिंग प्यूबर्टी। सो यू आर नाउ केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सो अभी बच्चों का समझो इरेक्शंस आने लगा 9-10 साल में, तो शादी नहीं हो जाएगी, शादी करने के लिए उसको 21 साल लगेंगे, लेकिन वो सेक्सुअली पोटेंट हो गया, ही इज नाउ केपेबल ऑफ अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ही इज नाउ केपेबल ऑफ हैविंग अ सेक्सुअल एक्सप्रेशन। सो उसको क्या बोलता है, अटेनिंग प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी अटेन करते हैं, समझो लड़कियों को प्यूबर्टी तो 12-13 साल में ही आ जाती है, तो 12-13 साल में तो कोई शादी नहीं कर देता है, या गर्ल्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बिकम सेक्सुअली एक्टिव, लेकिन वो सेंस आ जाता है एंड यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ फीमेल एंड आई नीड, मेरी कुछ फिजिकल नीड्स है, ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है। सो दैट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी। सो ये आएगा, ये होएगा। सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। नाउ सी गोइंग फर्दर, ये एज का डिफरेंस और ये सब कंसेप्ट है वो थोड़ा सा लीगल के हिसाब से भी जरूरी है। नाउ लेट अस गो बैक टू द सेक्शन। सो नाउ लेट मी पुट इट दिस वे, या मैं एक समरी वाइज ही बोल देता हूँ कि सेक्शन 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें रोमन 1, देन रोमन 4 विच वी विल डिस्कस, वी आर येट टू डिस्कस, एंड रोमन 5, रोमन 1, रोमन 4 and roman 5. If these conditions are violated, in that case that marriage will become
a void marriage. That marriage will be rendered as a void marriage. And if conditions mentioned in section 2 and section 3 are violated, that will make the marriage that will render the marriage merely voidable, which can be avoided by one of the parties. That we will deal in more detail while dealing with section 11 and section 12, which deals with void and voidable marriage. वो हम लोग बाद में करेंगे. लेकिन फिलहाल ये समझ लो, section 5 sets out the conditions for a valid Hindu marriage, and what are the conditions mandatory. Compliance of subsection 1 Roman 1, then subsection Roman 4 and subsection Roman 5. ये compliance हो गया तो मैरिज वैलिड हो जाएगा. अगर ये कंडीशंस वायलेट हो गए, इनका ये हो गया, उल्लंघन हो गया, इन दैट केस दैट मैरिज विल बी रेंडर्ड वॉइड. दिस इज क्लियर. देन वी गो टू नेक्स्ट सेक्शन. पहले सेक्शन 3 देख लो. द ब्राइडग्रूम हैज कंप्लीटेड एज ऑफ 21 years and the bride age of 18 years at the time of marriage. In that case, this marriage will be rendered merely irregular, and that can be regularized subsequently also. So ये जो वायलेशन है उसको उतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा. Now go to 4 and 5. very important to understand what is the basic concept of void marriage. एक तो हमने रोमन 1 देख लिया, that either spouse living. So अगर मेरी शादी पहले हो चुकी है और मेरी वाइफ जिंदा है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ माई वाइफ, या मैंने जब तक अलग से प्रॉपरली डिवोर्स नहीं लिया है तब तक मेरा मैरिज जिंदा है. Even if we are residing separately, we are not cohabiting with each other. The marriage is still in subsistence, and the marriage will remain in subsistence till the lifetime of the party. So जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी वाइफ जिंदा है, लेकिन अलग अलग रह रहे तो भी हम शादीशुदा ही रहेंगे. Unless and until I approach a court and get proper decree of divorce, that marriage tie is dissolved. That apart. Now go to Roman 5. The parties are not within the degrees of prohibited relationship. पहले ये समझ लो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है. व्हाट इज अ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप? प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप और नेक्स्ट जो है सपिंडा. सी रीड 5 फॉर अ मोमेंट. द पार्टीज आर नॉट सपिंडास ऑफ ईच अदर. तो ये खाली पहला दोनों पढ़ लो, दोनों को पहले डिस्कस करते हैं, देन बाकी का पोर्शन, बाकी का पार्ट कर लेंगे. रोमन 4, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, एंड रोमन 5, द पार्टीज आर नॉट सपिंडास ऑफ ईच अदर. नाउ व्हाट आर दीज कंसेप्ट? थोड़ा थोड़ा सुना होगा, कभी कभी मालूम होगा. सी आपने ये कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल देखा है, दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. सिमिलरली ऑल subpoenas come within the prohibited degrees, but every relationship between a prohibited degree is not subpoenas. So subpoenas basically small concept है और prohibited degrees is a wider concept. See, इसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं. Now see, पहले subpoena कौन होता है? Go to Roman 5. Parties are not subpoenas of each other. Subpoena means what? पिंडदान. हिंदुओं में क्या रहता है? हिंदू लोकांमध्ये काय है कि suppose you and me, we are offering पिंडदान to the same person, same ancestor, we are subpoenas. Subpoenas means what? एक पिंड वाले, एक गोत्र हो गया. एक गोत्र is something different, not गोत्र. हम लोग एक ही फैमिली के हो गए, so blood relationship हो गया. Now suppose my father passes away, my grandfather passes away. Now me, my father and his brother, that is my uncle, real uncle, और इवन कजिन अंकल के जो बच्चे, सो इसमें कौन कौन आ जाएगा? मैं, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, देन मेरा चाचा, चचेरा भाई, सगा चचेरा भाई, चाचा का चाचा, मतलब कजिन हो गया. तो वो एक फॅमिली में आते ना. आता मी जोशी आहे, तर माझे जेवढे जोशी आहेत आम्ही सगळे सगोत्र पण झालो आणि सगळे सपिंडा पण झालो, कारण आमचे एंसेस्टर काय आहेत? सेम है, हमारे एंसेस्टर सेम है. सो जब भी हम लोग से हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू नॉट माइथोलॉजी, हिंदू रिलीजन में देर इज अ कंसेप्ट दैट देर इज लाइफ इवन आफ्टर डेथ. इसीलिए पिंडदान किया जाता है कि मेरे जो गए हुए पूर्वज है, मेरे जो मरे हुए पूर्वज है, उनको खाना मिले. कंसेप्ट है, विश्वास रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो नहीं रखो, दैट इज योर चॉइस. मैं यहाँ पे किसी को रिलीजन के ऊपर प्रीच करने नहीं बैठा हूँ. लेकिन कैसा रहता है देखो भाई और बहनों, इन दैट केस
यू आर ऑफरिंग पिंड टू द सेम पर्सन, सो यू आर सपिंडास. सो उसमें कौन कौन आ गया? मैं, मेरे पिताजी, चाचा जी, देन सगा चाचा, चुलत चाचा, चचेरा भाई, सब लोग आ गए उसमें. एंड सी जो कंसेप्ट है ना वो डिग्रीज रहते हैं, एसेंट और डिसेंट. सो फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस दैट. इन दैट केस कैसा रहता है कि आपका पेरेंट्स दो होते हैं, आपके रिलेशन भी दो तरफ से होते हैं. देर आर सर्टन रिलेशनशिप्स विच आर फ्रॉम योर फादर साइड एंड देर आर सर्टन रिलेशनशिप्स विच आर फ्रॉम योर मदर साइड. मतलब पैटर्नल साइड के रिलेशनशिप हो गए और मैटरनल साइड के हो गए. इन दैट केस मैटरनल साइड के 3 डिग्रीज होते हैं और पैटर्नल साइड के 5 डिग्रीज होते हैं. अब ये डिग्रीज क्या होते हैं? 45 डिग्रीज, 55 डिग्री, जो ज्योमेट्री मैथ्स में सीखा है वो भी नहीं, और टेम्परेचर का भी नहीं. ये डिग्रीज मतलब कैसा? सी यू, मी एंड माई फादर is 1 degree of ascent. My father and my grandfather, that is 2nd degree of ascent, and my father and great grandfather becomes the 3rd degree of ascent. और यही आप नीचे के तरफ जाओ, me and my son is the 1st degree of descent. Me and my son and my grandson is the 2nd degree of descent, and my ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन. अभी तक आना बाकी एक सन ही है मेरे को फिलहाल. सो ये डिग्रीज ऑफ एसेंट एंड डिसेंट हो गए. एंड व्हेन यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द पर्सन इन सेम जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल मी एंड मेरा सग्गा चचेरा भाई, वी आर कोलैटरल्स. हम लोगों में कोई डिग्री नहीं है, एसेंट का भी नहीं है, डिसेंट का भी नहीं है. लेकिन मी एंड माई फादर या मी एंड माई अंकल या मी एंड माई सन और मी एंड माई ब्रदर सन, माई नेफ्यू, दैट विल बी एसेंट डिसेंट. तो एसेंट कैसा हो गया? ऊपर की तरफ गया, डिसेंट नीचे की तरफ गया. सो एवरी डिग्री, सो 1 जनरेशन इज एन डिग्री. अभी ये जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज है ना वो स्लाइटली वाइडर कंसेप्ट है. प्रोहिबिटेड डिग्रीज में मैटरनल लोग भी आ जाते हैं, लेकिन मैटरनल लोग आपके सपिंडा नहीं होते हैं. सी अभी प्रोहिबिटेड डिग्रीज में और कौन आ जाएगा? फ्रॉम योर मदर्स साइड, योर मदर, मदर्स मदर, मदर्स मदर्स मदर, मदर्स फादर या मदर्स सिस्टर. अभी वो सिस्टर की लड़की होगी तो तुम्हारी मौसेरी भाई या बहन हो गए, सो योर मैटरनल कजिन्स हो गए. सो दे आर ऑल्सो विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज. सो यू कैन मैरी दोज पर्सन. सो प्रोहिबिटेड डिग्रीज इज स्लाइटली अ वाइडर कंसेप्ट जो मैटरनल और पैटर्नल दोनों कवर करते हैं. एंड सपिंडास इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड डिग्रीज, लेकिन वो स्लाइटली नैरोअर कंसेप्ट है. सपिंडा मतलब एक ही पिंडा जब भी ऑफर होता है वो सपिंडा हो जाता है, लेकिन दोनों में शादी नहीं हो सकती है. अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ कस्टम. नाउ सी रीड दैट सेक्शन फर्दर. पहले ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, नहीं तो वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देख लो, क्लियर हो जाएगा. सो आई डोंट नीड टू वेस्ट माई टाइम ऑन दिस वीडियो. द पार्टीज मस्ट नॉट बी coming within prohibited degrees of relationship and the parties must not be subpendas of each other unless. Now read that section further. Read subsection 4 first. The parties are not within degrees of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of them, now this is very important, each of them permits of a marriage between the two. See each of them, और जो ceremonies of marriage था उसमें क्या था? Governing either of them. सो जब भी एक हिंदू सिख से शादी कर रहा है तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो सप्तपदी कर लो या तो अनंतकारा कर लो. लेकिन तीसरा करोगे तो मैरिज इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. लेकिन ऑप्शन है आइदर ऑफ द पार्टीज. यहाँ पे कैसा है? दोनों को होना चाहिए. सो इफ देर इज अ प्रोविजन दैट एक कस्टम और यूसेज है कि शादी हो सकती है लेकिन दूसरे को गवर्न नहीं हो रहा है तो वो शादी फिर भी वॉइड हो जाएगी. नाउ फर्स्ट टेल मी व्हाट इज अ कस्टम एंड यूसेज. What is a custom and usage? ज़्यादा इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है. गो टू सेक्शन 3. सेक्शन 3 डेफिनेशन सेक्शन A. Section 3A defines custom and usage. In the act, unless the context otherwise requires, A. The expression custom and usage signify any rule which have been continuously and uniformly observed for a long time,
has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family. Provided that, now see the proviso, there are two provisos. First proviso, provided that the rule is certain and not unreasonable or opposed to public policy. And second proviso, provided further that in case of a rule applicable only to a family, it has not been discontinued that family. कभी रहता है ना, कोई प्रैक्टिस या यूसेज होता है ना, वो पूरे समाज को गवर्न करता है, किसी पर्टिकुलर एरिया को होता है, और एक होता है जो खाली फैमिली के लिए होता है. इन दैट केस दैट फैमिली मस्ट नॉट हैव डिसकंटिन्यूड दैट. सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लो व्हाट इज अ कस्टम, व्हाट इज अ यूसेज. कस्टम मीन्स व्हाट? रूढ़ी, परंपरा, सर्टन रूल्स विच हैज अ वेरी what you can say, it has a very power in the sense that it can overrule statutory provisions. अगर कस्टम है और यूसेज है तो आपको ये शर्त नहीं लगती है रोमन 4 और रोमन 5 की. इन दैट केस इवन इफ अ मैरिज इज सोलमनाइज्ड बिटवीन पार्टीज हु आर विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप और द पार्टीज आर सपिंडर्स ऑफ ईच अदर, इन दैट केस इफ दैट कस्टम एग्जिस्ट ऑफ मैरिज, उनको ये नहीं लगता. एग्जाम्पल देता हूँ, देखो महाराष्ट्र, सो पहिले जय महाराष्ट्र, पहिले मराठी आणि महाराष्ट्राचंच एक्झाम्पल देणार. 96 कोळी मराठी. शिवाजी महाराजांच्या काळात लग्न कुठे व्हायची? नात्यातच व्हायची. एंड आइडियली किससे शादी किया जाता है महाराष्ट्र में? मामा के लड़की के साथ. मामा के लड़की के साथ शादी करने का व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी द आइडिया, रैशनल, मोरल बिहाइंड दिस? सी पुराने ज़माने में जब भी लड़की शादी करके जाती थी तो उसको विदा कर देते थे. आजकल जितने माँ बाप वापस लड़कियों को बुलाते हैं, या जितना इंडल्जेंस और इंटरफियरेंस लड़की के घर वालों का आज के तारीख में होता है, उतना वो तारीख में नहीं होता था. वो टाइम पे था ना कि एक बार अर्थी नहीं, क्या बोलते उसको, डोली उठ गई. सीधा मैं अर्थी में ही पहुँच गया. एक बार डोली उठ गई तो मैके से ससुराल चले जाओ, और ससुराल से फिर अर्थी ही उठनी चाहिए. एक बार लड़की को विदा कर दिया तो अलविदा कर दिया, वापस वो घर में नहीं आनी चाहिए, या वो पराई हो गई. आजकल वैसा कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज यू सी इवन नाउ टुडे इवन मैरिड वीमेन आफ्टर मैरिज स्टिल रिमेन अ लीगल हेयर ऑफ द फादर एंड दे हैव इक्वल राइट इन प्रॉपर्टी. दैट वी विल डील इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट, जहाँ पे शादी होने के बावजूद एक लड़की को उसके मैट्रिमोनियल होम में प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है. शी स्टिल रिमेन्स a co-partner as well as legal है. that we will deal later. so पहले ये समझ लो that कस्टम में क्या यूसेज, और पहले यूसेज और कस्टम में क्या फ़र्क होता है. एक एग्जांपल देता हूँ. एक पत्थर है और दूसरी ईंट है. पत्थर फेंक के मारेंगे तो क्या हो जाएगा? सर फूट जाएगा. लेकिन ईंट फेंक के मारेंगे तो कम लगेगा, लेकिन लगेगा. सी सिमिलरली किसी को पत्थर नहीं मारना है. कस्टम इज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ. यूसेज ऑल्सो हैज़ अ फोर्स ऑफ लॉ, लेकिन उसका थोड़ा फोर्स कम होता है. सो ईट मतलब देखो, घर बनाने के लिए दोनों की ज़रूरत पड़ती है. सो कस्टम और यूसेज का इक्वल इंपॉर्टेंस है. नाउ फर्स्ट टेल मी, लेट अस फर्स्ट डिस्कस सर्टन थिंग्स ऑफ लॉ विच वी नीड टू. ये आपका ज़्यादा डिटेल में जूरिस्प्रूडेंस में कवर हो जाएगा इन नेक्स्ट सेमेस्टर. फर्स्ट टेल मी व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉ. लॉ को डिक्लेयर करने के या कायदा बनने के कौन से मार्ग होते हैं, या कौन से, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉ. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, नंबर 1 इज द लॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट फॉर एंटायर इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट. सो महाराष्ट्र ने अगर कुछ कायदा बनाया दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. लेकिन अगर पार्लिमेंट ने कोई कायदा बनाया आहे, जर कुठला कायदा पार्लिमेंटने पारित केला असेल तर तो संपूर्ण भारतात लागू होतो. अँड यू आर वेल अवेअर दॅट 5 ऑगस्ट 2019 देर वॉज a constitutional amendment by which article 370 from the constitution has been abrogated. So now Jammu Kashmir is very well a part of India. So that special status has now gone. Otherwise इसलिए आप आज भी कोई भी एक्ट अभी निकाल के देखो, उसमें क्या है, एक्सेप्ट स्टेट एंड जम्मू, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. लेकिन नाउ दैट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का वो स्टेटस निकल चुका है. सो नाउ वॉट एवर लॉज आर देयर, दोज आर एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो. Now see,
So first and the most important source of law, first source of law is the statutory enactments which are made by the parliament and state legislature. Then next, second, which is another second important source of law, is the judicial pronouncement, जिसको precedents बोलते हैं. Precedents मतलब क्या, जो laws are interpreted by the courts and the courts decide something. तो जो भी court decide करेगा, those are binding on all courts. So if any decision is taken by the Supreme Court, in that case that decision is binding on entire India. If that decision is taken by any particular high court, that is binding on all other subordinate courts within that particular high court, coming under that high court. And third important source of law is the custom and usage. So custom को कभी कभी इतना force रहता है that it can even override certain provisions of statutory law which are passed by the parliament. अभी हिंदू मैरिज एक्ट तो पार्लियामेंट ने पास किया है. सो यू कैन मैरी अ पर्सन हु कम्स विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज और इट्स सपिंडा. लेकिन अगर कस्टम है और यूसेज है विच इज गवर्निंग बोथ द पार्टीज, इन दैट केस दैट मैरिज कैन बी परमिसिबल. एग्जाम्पल ले लो जो मैं अभी दे रहा था, मराठा समाज, 96 कोळी मराठा. शिवाजी महाराजांच्या काळात बघा, शिवाजी महाराजांच्या काळात लग्न ही भावा बहिणींची केली जात होती, म्हणजे कसं मामाच्या ह्याच्यात व्हायची. आता नहीं तो आइडियली यू सी, सो मामा के लड़की के साथ शादी हो सकते, अत्ते मामे भावंड ह्यांच्यात लग्न व्हायची. सो इसके पीछे रैशनल क्या था कि बाबा लड़की को शादी करके भेजा तो उसकी सासू कौन होगी, सासू माँ, उसकी आत्या होगी. इन दैट केस वो उसको हैरान नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी, भूखा नहीं मारेगी. नहीं तो यू नो दैट इन अर्लियर स्टेजेस बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, खूब छळ व्हायचा, बहुत ज़्यादा हैरासमेंट होती थी. सो वो कम से कम रिश्ते में होगा तो वो अपने ही भाई के लड़की को हैरास नहीं करेगी. दैट वाज द कंसेप्ट. वहाँ से वो एक्चुअल प्रैक्टिस शुरू हो गया एंड देन इट बिकेम अ कस्टम एंड नाउ इट इज़ अ लॉ दैट इन केस यू आर गवर्न बाय दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस यू कैन स्टिल मैरी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज, या सपिंडा रहेगा तो भी. देन अनदर एग्जाम्पल ले लो, साउथ इंडिया में जाओ, इन सदर्न इंडिया नॉट ओनली मैरिज विद मामा का लड़का, मामा के साथ भी शादी की जाती है. मतलब लड़की किसको दी जाती है, कन्यादान किसको दिया जाता है, उसको पति कौन किया जाता है, भाई को. सो माँ का जो भाई है मामा से ही शादी की जाती है. तो लड़की छोटी रहती है तभी वो मामा को मामा बोलती है, शादी के बाद भी मामा बोलती है और उसको मामा ही बनाती है, लेकिन वो पति बन जाता है. सो नॉट ओनली मामा का लड़का, इवन सर्टन कम्युनिटी, सर्टन कास्ट, वहाँ पे मामा से भी शादी की जाती है. सो लेकिन ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ए कस्टम एंड यूसेज विच इज़ गवर्निंग बोथ द पार्टीज. सो एक को एप्लीकेबल है, दूसरे को नहीं, तो भी वो मैरिज वॉइड हो जाएगा. सो दीज आर द कंडीशंस. सेक्शन 5 ठीक से पढ़ लो, वीडियो 10 बार रिवाइंड करके देख लो, एंड स्टिल यू हैव एनी डिफिकल्टीज यू कैन वेरी वेल एंड विदाउट एनी हिंड्रेंस एंड डिफिकल्टी यू कैन डिस्कस इट विथ मी ड्यूरिंग आवर डाउट सॉल्विंग, या जब भी हम लोग जूम ऐप पे या गूगल मीट पे मिलेंगे, व्हेन वी विल बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. ये तो रिकॉर्डेड है, आपको रिकॉर्डिंग देखना है, पढ़ना है, लेकिन जब भी व्हेन वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर तभी आप डेफिनेटली पूछ सकते हो. लेकिन अगर आप ये वीडियो ठीक से पढ़ो और ठीक से समझो तो आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी, ये मेरा दावा है. क्योंकि दिस इज़ माई एक्सपीरियंस. मेरे क्लास में कोई भी स्टूडेंट बैठे, राइट फ्रॉम द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट टू इवन अ वेरी ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट, वो बराबर समझ पाता है. मेरा टीचिंग का वो मतलब थोड़ा सा वो हिसाब से मैं मोल्ड करके पढ़ाता हूँ. सो यहाँ पे सेक्शन 5 खत्म हो गया. कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज. सो लेट मी सम अप. अ मैरिज विल बी अ वैलिड मैरिज इफ conditions of section 5 subsection Roman 1, Roman 4 and Roman 5 are complied with and are not violated. अगर वो comply हो गए तो valid marriage हो जाएगा. and Roman 1, Roman 4 and Roman 5 if violated that will render the marriage void. और अगर Roman 2 और Roman 3 violate हो गया that will render the marriage merely voidable and not void. void और voidable में क्या फ़र्क होता है? Again going back to contract. voidable बेसिकली वैलिड होता है and it remains valid unless that party who alleges that my consent is not free consent, और मुझे फोर्स से, कोर्शन से या कोई और फैक्टर जो उसमें है, ये फर्स्ट इज व्हाट,
coercion. Second is what? Undue influence. Third is what? Misrepresentation. Fourth is what? Fraud. And fifth is mistake. Mistake again is of two types: mistake of fact and mistake in law. So you are aware, लीगल लैंग्वेज आपका हुआ है, मिस्टेक इन लॉ होगा तो ही वो एक्सक्यूज होता है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट एक्सक्यूजेबल. वो लीगल मैगजीम है ना, इग्नोरेंशिया जूरिस इग्नोरेंशिया जूरिस एक्सक्यूसेड. एंड इग्नोरेंशिया इसको क्या बोलते हैं यार, फैक्ट्स का, इग्नोरेंशिया फैसिट. इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेड एंड इग्नोरेंशिया फैसिट एक्सक्यूसेड. मतलब वो फैक्ट्स पे रहेगा तो एक्सक्यूज हो सकता है. इग्नोरेंस इन लॉ इज नॉट अलाउड. सो दिस इज सर्टन टू डू विथ योर लीगल लैंग्वेज. So see again, let me repeat before going further. Section 5, very important, lays down the conditions of a valid Hindu marriage, and if the marriage is to be a valid marriage, it must comply with Roman 1, Roman 4 and Roman 5. ये 3 conditions violate नहीं होने चाहिए. अगर ये conditions violate हो रहे हैं तो in that case that marriage will become a void marriage, and Roman 2 and Roman 3 अगर violate हो गया, that will make the marriage merely voidable. So voidable marriage का क्या फर्क है? देखो, voidable contract क्या होता है? It remains valid unless and until one of the parties approaches the court of law and files a suit for a declaration that my consent was not free consent, या मेरा जो भी ये factor है, for this reason this can be avoided by me and therefore declare that the agreement is not binding on me. अगर वो ये नहीं करेगा तो that will remain valid. Therefore void तो void है, valid भी valid है, लेकिन problem कहाँ पे होता है? voidable रहेगा तो, क्योंकि वो सेट असाइड हो सकता है लेकिन वो नहीं करेंगे ऑप्शन तो वैलिड रहेगा. ये इतना फिलहाल समझ लो. ओके, सो सेक्शन 5 यहाँ पे सम अप हो गया. सेक्शन 6 हैज बीन एब्रोगेटेड क्योंकि ये मेजॉरिटी एक्ट जो आ गया है वो एज के हिसाब से 21-18 नहीं रहेगा तब तक शादी हो ही नहीं सकती है. एंड नो गार्डियन कैन गिव कंसेंट. देयरफॉर वो दैट सेक्शन हैज बीन रिमूव्ड नाउ बाय चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट. Then section 7-8 has been done. Now directly go to section 11. See, हम लोग सीक्वेंस से नहीं जा सकते, सेक्शन पे जंप करना ही पड़ेगा. So first let us deal with what is void marriages. So I will let you know the sequence today. First we will deal with void marriages, then we will go to voidable marriages, that is section 12, and then we will go to the various ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स के क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं. ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स में भी समझ लो, डिवोर्स 2 टाइप का होता है. एक होता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, झगड़ा नहीं कुछ नहीं, बोथ से कहे हमको शादी तोड़वानी है, हमको शादी डिवोर्स चाहिए, एंड बोथ गो बिफोर द कोर्ट प्रेइंग फॉर डिवोर्स. दैट इज अंडर सेक्शन 13B, दैट इज डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, वो भी बाद में देखेंगे. एंड सेक्शन 13A वो है दैट इज कंटेस्टेड डिवोर्स, जहाँ पे एक पार्टी डिवोर्स के लिए कोर्ट को अप्रोच करती है और दूसरी पार्टी आके अपोज करती है. सो दैट इज कंटेस्टेड डिवोर्स. सो दोज आर द एक्चुअल ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स टू बी स्टडीड. सो वो हम लोग बाद में करेंगे. बिफोर दैट फर्स्ट गो टू सेक्शन 16. व्हाट इज सेक्शन 16? It deals with legitimacy of children of void and voidable marriages. See, legitimacy means what? जायज़ है या नहीं. See, अगर मेरे माँ बाप की शादी void है, they are in a void marriage or they are in a voidable marriage, इसमें मेरा दोष क्या है? Am I at fault? No. उन्होंने मुझे जन्म दिया, so why should I suffer for that? So section 16 is a welfare legislation meant for children. And irrespective of the fact whether the marriage is a valid marriage में तो कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं है, whether it is a valid marriage, void marriage or voidable marriage, children born out of such marriage will always deemed to be legitimate. So क्या होता है, बच्चों को इफेक्ट नहीं होना चाहिए. It is a welfare legislation. So first let us read this section, understand that, and then we go further to section 11, that is void marriages. Section 16 पहले पढ़ लो. Legitimacy of children of void and voidable marriages. 1. Notwithstanding that a marriage is a null and void under section 11, any child of such marriage who would have been legitimate if the marriage had been valid shall
be legitimate. Child of the parties of marriage, if at the date of decree it has been dissolved instead of annual, I just went jump to next section. Any child, I'll again start reading subsection 1. Notwithstanding that a marriage is null and void under section 11, any child of such marriage who would have been legitimate if the marriage had been valid shall be legitimate, whether such child is born before or after the commencement of the Marriage Laws Amendment Act 1976, and whether or not a decree of nullity is granted in respect of that marriage under this act, and whether or not the marriage is held to be void otherwise than on petition under this act. So irrespective of the fact that the marriage is a void or voidable marriage, children who are born out of such marriages are deemed to be legitimate, so that उनका जो status है ना वो affect नहीं होगा. ओके 2 and 3 आपने आप पढ़ लो, कुछ डिफिकल्टी होगा यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी. एंड कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट एंड पोर्शन दैट वी हैव टू कवर, इट इज़ क्वाइट वास्ट, काफ़ी सारा अनकोडिफाइड पार्ट भी करना है. सो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू रीड ईच एंड एवरी सेक्शन. सो उसमें का जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट जो मोर इम्पोर्टेंट है वो और ज़्यादा डिटेल में उसको डील करेंगे. सो सेक्शन 16 समझ लो. सो चिल्ड्रन विच आर बॉर्न, वैलिड मैरिज में तो कुछ इशू है ही नहीं. Even if the marriage is void or voidable, children born out of such marriage will be legitimate, and their capacity to become a legal heir, their capacity to be a co-partner in the joint family property or to succeed to the property of the parents will in no situation be affected. Okay. So section 16 समझ लो. Then now go to section 11, that is void marriages. Any marriage solemnized after commencement of this act shall be null and void and may, on a petition, now see this is very important, underline these words, presented by either parties thereto. So either parties thereto को underline करके रखो. Against the other party be so declared by a decree of nullity if it contravenes any of the conditions specified in clauses Roman 1, Roman 4 and Roman 5 of section 5. Roman 1, Roman 4, Roman 5 जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था. Okay, now see, void marriage is no marriage at all. It is not a marriage in eyes of law. Therefore, the marriage is not a marriage is no marriage in eyes of law. Ideally, without going to section 16, without section 16 being applicable, children born out of such marriage will actually be illegitimate. लेकिन section 16 हमने discuss किया, it will come under that sweep and children will not be affected. But technically, children born out of such marriages, first see पहले effect क्या होगा? No marriage at all. Second effect क्या होगा? अगर marriage नहीं होगा, the parties are not legally wedded husband and wife. Third, the children born out of such wedlock will not be considered to be legitimate. So ये क्या हो जाएंगे? Illegitimate children हो जाएंगे, नाजायज बच्चे हो जाएंगे. And in that case, there will be no rights and liabilities against each other. Against each other. लेकिन देखो क्या होता है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैंने शादी कर ली और मुझे पता ही नहीं था दैट आई एम कमिंग विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज. या इसमें सी कभी कभी होता है कि पार्टी जानबूझ के भी शादी कर लेते हैं, इवन नोइंग वेल द फैक्ट दैट दे आर विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज एंड उनका मैरिज विल बिकम वॉइड. ऐसे शादी करते हैं. सी टेक्निकली दैट मैरिज बिकम्स अ वॉइड मैरिज, लेकिन प्रैक्टिकली फॉर ऑल पर्पजेज दे स्टिल विल रिमेन हस्बैंड एंड वाइफ. एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ. मेरा एक बचपन का दोस्त है, हम लोग साथ में स्कूल में पढ़ते थे, राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड. एंड हम लोग का घर में आना जाना था. उसकी बहन मेरी मानवी बहन है. एंड व्हाट हैपेंड यू नो, शी एंटर्ड इनटू अ रिलेशनशिप विथ हर रियल कजिन, जो चाचा का लड़का होता है ना, सगे चाचा का लड़का. सो का कजिन ब्रदर के साथ में अफेयर हो गया एंड शी एंडेड अप मैरिंग दैट पर्सन. नाउ टेल मी, इज दिस अ वैलिड मैरिज? आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज वो तो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में तो आ ही रहा है, लेकिन सपिंडा भी है.
So not only Roman 4, but Roman 5 is also violated. So that is patently a illegal marriage, void marriage. लेकिन ये आपको मालूम है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, मैंने आपको बताया, तो आप भी अभी स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हो. सो वी बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ लॉ वी अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग. लेकिन घर वालों ने क्या किया, शुरू में जरा ये हुआ, इट वाज नॉट अप्रूव्ड, लेकिन फाइनली क्या हो गया. सी कोई भी बच्चे यूजुअली 10 में से 8, हर एक पिक्चर में तो सैराट नहीं हो सकता है ना, कि माँ बाप या ऑनर किलिंग का तो केस नहीं हो सकता कि अरे लड़की ने मर्जी के बाहर जाति से बाहर शादी कर ली बिना बोले तो उसका खून कर दो. ये तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया. ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, या तो माँ बाप कभी रिश्ता ही नहीं रखेंगे, या तो फिर एवरेज माँ बाप जो है, जो 10 में से 8 माँ बाप है, वो लोग क्या करेंगे, शुरू में नहीं जाएंगे, रुसतिल फूकतिल चिड़तिल, लेकिन बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है चलो जाने दो, कर दिया है ना. सो इन लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया. सो यू नो नाउ दैट द मैरिज इज वॉइड, आई नो दैट द मैरिज इज वॉइड, लेकिन वो लोग आज भी शादीशुदा और पति पत्नी की तरह रह रहे हैं. दो दिस इज अ वॉइड मैरिज, दैट मैरिज प्रैक्टिकली इज वैलिड, बिकॉज सी क्या होता है, हु विल गो टू द कोर्ट एंड अप्रोच एंड से दैट द मैरिज इज वॉइड, हु कैन गो, ओनली पार्टीज देयर टू. अभी ये दोनों ने अगर वॉइड शादी की है तो वो दोनों में से कौन जाएगा कोर्ट में, दोनों भी नहीं जाएंगे. सो हु विल सीक दैट डिक्लेरेशन, यू एंड मी, यार वो दो लोग हैं, फलाना लोग हैं, उन्होंने रिश्ते में शादी की है, सो ये वॉइड शादी हो गई. नो, हु विल गो एंड गेट दैट डिक्लेरेशन, ओनली दे कैन डू. सी रीड सेक्शन 11 अगेन. Any marriage solemnized after commencement of this act shall be null and void, and may, on a petition presented by either parties thereto. Now, who are either parties thereto? Either husband or wife has to go before the court. तो ये दोनों तो जाएंगे नहीं. So technically वो marriage फिर भी valid रह जाता है, though it is void in legal sense. Against the other party be so declared by a decree of nullity if it contravenes any conditions as specified in clauses 1, Roman 1, Roman 4 and Roman 5 of section 5. So practically, though their marriage is void, who will go and get the declaration? Neither husband nor wife. So that marriage practically remains a valid marriage, though it is a void marriage. खाली ये इशू कभी क्रॉप अप हो सकता है, मालूम है. And when can a third party seek a declaration that the marriage between these two persons A and B is void? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ. सी कभी कभी क्या होता है ना, अब एक एग्जांपल ले लो, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एंड देन फॉर सम रीज़न द हस्बैंड डाइज ऑफ फॉर एनी रीज़न, वॉट एवर, एक्सीडेंट से मर गया, या उसको हार्ट अटैक आ गया, या और कुछ हो गया, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, बट द हस्बैंड पासेस अवे, नाउ ही इज़ नो मोर. सो ये सिचुएशन में क्या होता है, ही बिकम्स एंटाइटल फॉर गेटिंग अ शेयर इन द जॉइंट फैमिली. तो अगर जॉइंट फैमिली का पार्टीशन नहीं हुआ है, पार्टीशन के टाइम पे अगर वो विधवा हो चुकी है, इन दैट केस द अदर रिलेटिव्स कैन अप्रोच टू द कोर्ट एंड सीक अ डिक्लेरेशन दैट उनके बीच में जो शादी हुई थी, मैरिज सोलमनाइज्ड बिटवीन ए एंड बी वाज वॉइड, एंड कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट इट वाज अ वॉइड मैरिज. लेकिन टेक्निकली फिर भी फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताता हूँ. सी व्हाट वाज द सेकंड इफेक्ट. पहले इफेक्ट तो क्या था, नो मैरिज एट ऑल. सेकंड इफेक्ट क्या था, द पार्टीज डू नॉट रिमेन लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ. अगर वेडलॉक ही अनलॉफुल है या वॉइड है तो चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ सच मैरिज विल बिकम इलेजिटिमेट. लेकिन सेक्शन 16 हमने देखा. सो यही एग्जांपल का देख लो, जो मेरा दोस्त की बहन का है, दैट समझो टचवुड होना नहीं चाहिए, खुदा ना खास्ता, लेकिन अगर उसका पति कल गुजर गया एंड शी हैज़ टू सीक पार्टीशन, उसको अगर पार्टीशन में शेयर चाहिए, और दूसरा कोई जाके बोलता है कि अरे ये तो मैरिज ही वॉइड है, इन दैट केस शी विल नॉट बी एंटाइटल, शी विल नॉट बी द वाइफ, क्योंकि मैरिज उनके बीच का मैरिज वॉइड ही है. लेकिन क्या हो जाएगा, जो बच्चे पैदा हुए हैं वो सेक्शन 16 के स्वीप में आके दे विल बी डीम्ड टू बी लेजिटिमेट. सो इन दैट केस द वाइफ विल बी एक्सक्लूडेड, लेकिन द चिल्ड्रन विल सक्सीड टू द प्रॉपर्टी, एंड उसको प्रॉपर्टी में शेयर फिर भी मिल ही जाएगा. सो टेक्निकली वॉइड मैरिजेस आर वॉइड, लेकिन वो जाके डिक्लेरेशन कौन लेगा, मैं और आप तो नहीं ले सकते. सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस that marriage remains actually valid, practically valid, though legally void है. Okay, now see, अगर marriage void declare हो गया, in that case the wife or parties cannot have any claim against each other.
सो एलिमनी या और कुछ चीज़ें होती है ना, पोडगी जो हस्बैंड को देना पड़ता है, वो सब कुछ भी उसमें नहीं आएगा. सो सेक्शन 11 डन हियर. सेक्शन 12 voidable marriages I will continue in next lecture.